लेकिन सानू कभी अग जे सड़ने का सानू कभी कोई पैसा नहीं मिले, किस तरह को बराबर ले लेंगे ना। लेकिन सानू एक चीज़ का ये पहला नंबर तो यह है कि अगर सब तो ज़्यादा साढ़ा जमींदार जो भी लास होंगे साढ़ा अज दिन आने साढ़ा अग जाली कड़े साढ़ा फसल है जोड़ा वो साढ़ा जमींदार का हर बारी पे नुकसान होता है, क्योंकि तारा जो जिम्मेदार होंगे सर मैक्सीमम सर इसलिए जमींदार जो हजार जमींदार के ऊपर होना सर। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। सर पंप रामगढ़ या अपने आनंदपुर सर बॉर्डर पे जाके रुकनी थी। सर 100% हो गया सी, एक ट्रैक्टर अग से डिग पिया सी, ਉਹਨੂੰ फायर ब्रिगेड ने बचाया। ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ट्रैक्टर ਸੀ, बैटरी वगैरह ਉਹਦੀ ब्लास्ट हो गई सारी। हाँ जी ये ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ बच गया। सब ये डीसी चेयरमैन बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, तो क्या आप के लिए क्या लगता है कि आप किसानों के लिए क्या इनके लिए ऑफर कर सकते हैं? जी फस्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू ਵੀਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਔਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੀਡੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਕੀ ਬੋਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸક્ષਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 100% ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 100% ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 600 ਜਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਕਨਾਲ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਰ मतलब अच्छे दिन जेड़े वो साढ़े स्टार्ट हो गए। थैंक यू सो मच। सर इस समय आप बॉर्डर एरिया में दौरा कर रहे हैं और आपने देखा कि हजारों किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, मुझे यहाँ आके बड़ा दुख हो रहा है और बड़े दुख की बात है कि यहाँ लगभग 1200 किसानों की और लगभग 1200 एकड़ ज़मीन जो है वो फसल, खड़ी फसल जो है वो जल के राख हो गई है। तो इसमें 1000-1200 के करीब किसान जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं, जिनका कुछ नहीं बचा है। और यही देखने के लिए मुझे परसों ही पता चला, मैंने यहाँ की सरपंच साहिबा और यहाँ के हमारे बीडीसी चेयरमैन और डीडीसी के जो हमारे काउंसलर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि बहुत नुकसान हुआ है। तो कल मेरा दौरा था अखनूर तहसील में, तो मैंने इनसे बात की कि मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा। आज यहाँ आके मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। मौके पर जो देखने में आया है कि यहाँ पर बिजली डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही है और यहाँ पर जो पोल लगाए हैं 50 गज के दूरी पर होने चाहिए और ये एक स्पैन में 3-3 पोल और लगने चाहिए, तभी ये तारें जो है
अच्छी तरह से टाइट हो सकती हैं और दूर हो सकती हैं। ये तो ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक हैं और एक किसान अगर हाथ खड़ा करे तो ये तारें जो टच कर सकती है। और जहाँ पर जो कारण भी लगा है, मुझे कारण भी यही लगा है कि जहाँ स्पार्किंग हुई है, तारें जुड़ी हैं। स्पार्किंग होने के बाद ये ऊपर जहाँ हम खड़े हैं 11 kV की लाइन है, तो ये जुड़ेगी जब तो चिंगारे निकलेगी, आग निकलेगी। तो आग जब सूखी कणक है, जब तैयार होता है फसल तो बिल्कुल सूखा होता है। और आजकल जहाँ हवाएं भी चलती हैं तो एक बार आग निकली तो ये कहाँ तक फैल सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा किसानों को, अभी मैं कुछ आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि मैंने सुबह ही एक एडवाइजर साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि आप ये सारा डायरेक्शन दो, सारा केस जो है वो फाइल करके ले आओ। और उसके बाद एलजी साहब से मैं खुद भी मिलूँगा। हमारे जो यहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं, सरपंच हैं, डीडीसी के मेंबर हैं, बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, उनको भी साथ लेके गवर्नर साहब से मिलेंगे और इन लोगों की जो हालत हुई है तो वो पूरी कोशिश करेंगे इनको अच्छी तरह से मुआवजा मिले और आगे से ये हादसे ना हो। क्योंकि अभी मैंने कह दिया है कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हादसे हुए हैं आग लगने के और कारण क्या रहा है। अगर कारण ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का देखा गया तो मैं सिफारिश करूंगा सरकार से कि बिजली डिपार्टमेंट पर FIR लगेगी, क्योंकि ये उनकी लापरवाही लगती है। देखिए ये पिंगे पड़ी हुई है तारों की, सिर्फ 6 फुट ऊंची अगर कोई हाइट हाथ खड़ा करेगा तो तारा टच कर सकता है। तो इसलिए अभी रिपोर्ट आने के बाद जब ये साबित होगा कि जहाँ तारों के टच होने से स्पार्किंग हुई है, चिंगारी निकली है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं बिजली डिपार्टमेंट पर FIR दर्ज कराऊंगा और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं आगे रहूँगा। सर इस क्षेत्र में जो बॉर्डर एरिया है, इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही दंकल की गाड़ी है, इसके अलावा और नहीं है। इसके बाद हाँ ठीक, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल पूछा है। ये कल भी बात हुई थी। दमकल की गाड़ियाँ जो गांधीनगर में खड़ी रहती हैं, जहारासपुरा सिटी में खड़ी रहती हैं, अमूमन इन दिनों में कहीं ना कहीं गांव में आग लगती है और जब तक गाड़ियाँ पहुंचती हैं तब तक सब कुछ स्वाह हो जाता है। इसलिए जिस दिन हम LG साहब से मिलेंगे तो यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम जहाँ पर किया जाए, ऐसी भी हम उनको सिफारिश करेंगे, उनको मजबूर करेंगे सरकार को कि हमेशा यहाँ पर गाड़ियाँ रहनी चाहिए। दूर दराज में शहर से गाड़ियाँ आते आते जहाँ 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है और पूरा एरिया जो स्वाह हो गया है, जल के राख हो गया है। अगर नज़दीक में गाड़ियाँ होती तो शायद थोड़ा नुकसान होता, लेकिन यहाँ तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है जल के राख होगी। तो गाड़ियों की व्यवस्था भी हम सरकार से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी गाड़ियों की व्यवस्था कम से कम इन दिनों 2-3 महीने जो ये गर्मी वाले दिन होते हैं जब फसल तैयार होती है, यहाँ पर नज़दीक रखें ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए। सर काफ़ी किसान हैं जिनकी जो फसल है जो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सर उनके लिए कोई राहत पैकेज? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि पूरा इसका केस का जो पूरा सर्वे करके पूरी रिपोर्ट जो है पुलिस की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जिस दिन रिपोर्ट तैयार हो जाती है मैं इनसे कहूँगा कि ये रिपोर्ट जो है विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार करें। बहुत ज़्यादा एरिया है, बहुत इलाका है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो 1 हफ्ते में ये तैयार करके सरकार तक पहुँचाएँ। इन दिनों के बीच में ही मैं ये चिट्ठी भी लिख लूँगा, पुलिस से भी जवाब ले लूँगा कि 5 साल में कितने बार कहाँ पर आग लगी है, उसका कारण क्या रहा है। उसके बाद मैं गवर्नर साहब से मिलूँगा और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल है उससे मैं बाकी सिफारिशें जो है वो करूँगा। ठीक है सर।